चुका हूं साहब, और 30 बार और मैं आपके माध्यम से, भाई बैठ जाओ, मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सदन के रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। हम तो जम्मू कश्मीर को, सभापति महोदय, मेरी बात समाप्त हो जाने दो, डॉक्टर बाद में उनको देंगे। मेरी बात समाप्त होकर आप बोलो। Let us try to understand the point of order raised by Derek O'Brien and also the point of order raised by Siva. What you just hear me now? You don't want to hear? You want to dictate? You want to dictate like this? You ask your members to come to their seats first. The point of order is the bill is not circulated. Discussion should not be there. I agree. I am agreeing. But the reservation bill is already circulated. So let us first dispose the reservation bill. One. Secondly, now that all the bills are circulated, I will be asking the Home Minister to again introduce the bill. About the other three bills, you introduce again. सभापति महोदय,
और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संरक्षित करने पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 19 को स्वीकार करने का विचार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, मैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पर विचार किया जाए ऐसा अनुरोध करता हूं। Please, you ask your people to go to seat. Otherwise, I will not give permission. Mr. Vaiko, what do you want to say, please? Mr. Vaiko, mic to be given to Mr. Vaiko. Please. What is your point, sir? What is your point of order? This is nothing but part of the democracy. There is no emergency, only urgency. Try to understand this. Secondly, if you want to care to hear the chairman, once again I want to clarify, there seems to be confusion. Please hear me. Please hear me. What I want to say, then whatever you want to do. You don't want to hear, then I don't want to hear you also. Mr. Derek, you have to ask your members to sit in their seats. Then you can't create disorder and then ask point of order. How can these two things go together? So, for the sake of record, I want to say one thing. What I permitted the Home Minister is, first, to allow the reservation bill which has been circulated on Friday, which I have permitted. So, he has circulated today again and spoke about it. Agreed. Secondly, he started reading about other bills also, which were not circulated. That is a point of order raised by Siva and also partly by Ghulam Nabi Azad ji. What I want to say is that after my office told me, Mr. Vaiko, you have to go to your seat. Mr. Vaiko, please go to your seat. You are an elderly man. I gave you an opportunity first time. Hey, secondly, after coming to know that these bills were not circulated, then I told the Home Minister after circulation to move them again. They are circulated. And Ram Gopal Yadav also brought to my notice. Reservation, he said no problem. But other bills, you have problem. संविधान को इन दोनों का नाम क्या है? नाम बताओ. Nazir Ahmad Rahe and Fayaz have been named by me. They have to go out. The marshals take them out. If they don't go out, take them out. They are breaking the constitution. I can't tolerate it in Indian Parliament. This cannot be. इन दोनों को बाहर भेजना. अगर marshals को बुला लेते हैं. Other marshals come. No, members go to your place. Members go to your place. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हो गया है. दोनों यूनियन टेरिटरीज होंगी, केंद्र शासित प्रदेश होंगे. कश्मीर पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा. राज्य का दो हिस्सों में डिवाइड यानी विभाजन कर दिया गया है. एक जम्मू कश्मीर जो कि अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी होगी, केंद्र शासित प्रदेश होगा. दूसरा लद्दाख जो कि बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, ज्यादा वहां पर जनसंख्या नहीं है, उसे भी अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा. और जो अनुच्छेद 370 है, जिसके तहत विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, उसका भी एक ही खंड लागू होगा, बाकी खंड लागू नहीं होंगे. लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार कब तक अनुच्छेद 370, जिसका वादा प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह ने किया था कि उसे हटाया जाएगा क्योंकि एक ही देश के अंदर दो विधान. लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार कब तक अनुच्छेद 370, जिसका वादा प्रधानमंत्री मोदी ने
अमित शाह ने किया था कि उसे हटाया जाएगा, क्योंकि एक ही देश के अंदर दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं हो सकते। आखिरकार उस दिशा में बड़ा कदम मोदी सरकार द्वारा उठाया गया है। ऐतिहासिक फैसला आज मोदी सरकार का। संसद में इस वक्त हंगामा हो रहा है। राज्यसभा की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सबसे बड़ी खबर यह है कि 1948 के बाद, यानी 1941 का श्रावण 14, 1941 संवत का जो गैजेट पारित हुआ था, उसको हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। इस वक्त सिर्फ इंडिया न्यूज के पास एक गैजेट है, देख सकते हैं आप। इस गैजेट को अगर हम दिखा सके तो गैजेट देखिए, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। साफ साफ इस गैजेट में लिख करके आ चुका है कि भारत गणराज्य ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर सीधे एक केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही साथ लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। 370 के ज्यादा धाराएं खत्म कर दी गई हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पर आरक्षण विधेयक भी लगा दिया गया है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी आ चुकी है वो ये है कि अभी तुरंत थोड़ी देर पहले सदन को स्थगित करने से पहले 35A को भी पेश किया गया है। वो सारी जानकारियां थोड़ी देर में आपके सामने आएंगी। इस वक्त महबूबा मुफ्ती ने कह दिया है कि ये काला दिन है जम्मू कश्मीर के इतिहास का और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके की बातें अब सीधे उग्र तरीके से सामने आ रहे हैं। नजर बांधने की ट्विटर जारी है। हैरानी की बात है कि ट्विटर इस समय काम नहीं कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं दिल्ली से इस वक्त हो रहा होगा इस सारा संचालन। और अब सबसे बड़ी चीज इस देश में यह है कि भारत में अब एक नहीं दो नए यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए हैं। और अब सीधे आपको सदन ले जाना चाहिए। सदन में इस वक्त बहुत सारी कार्रवाई चल रही है, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर स्टेट को देश के साथ जोड़ा गया था और 70 साल में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन का बलिदान दिया है। हजारों पॉलिटिशियन में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लीडर खो दिए हैं, अपने वर्कर्स खो दिए हैं। हजारों बल्कि लाखों, अगर 47 से लेने, सिविलियंस कुर्बान हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखने के लिए बड़ी कुर्बानी के साथ हो। ये पहली दफा अटेम्प्ट नहीं हुई, लेकिन जब जब भी इस तरह की अटेम्प्ट हुई, कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम, लद्दाख के अवाम हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे, हर वक्त खड़े रहे, दुख दर्द में खड़े रहे। ये सत्य है, कुछ लोग थे वहां हैं और 47 जो एक्सेशन के खिलाफ One second. You know my temperament about you and first about you. The point is, if you are starting the discussion, I give you longer time. If you are responding on that, sir, this is it. No, if you want to have discussion, I will Honorable Chairman, sir. Honorable Chair, sir. This is something historical has happened. Is not ordinary day-to-day functioning of the bills and passage. So far, Sharab, Magoda, first deposit 10,000 crore with the bank. First deposit 10,000 crore with the bank. Shut up. You should not go on record. These allegations should not go on record. Both allegations should not go on record. Corrupted people have corrupted. Mr. Ramesh, please go to your seat. This will not go on record. Ghulam Nabi ji, please. Ghulam Nabi ji, you can't tell any member like that. You are a LOP. You are a LOP. Please confine to the issue. Please confine to the issue. Nothing shall go on record. Nothing shall go on record about charges. No. No.
own members also. They are making no sound. If you want to say something, say it, otherwise it will not go on record. What the Lord is saying also will not go on record. Sir, I strongly condemn the act of 2 or 3 members of the parliament, none from my party, and none from us, those who are sitting here. We stand by the Constitution of India. हम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम कंडम करते हैं उस एक्ट को जिसके द्वारा Mr. Vaiko, हम उसको उस एक्ट को कंडम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं। लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, डेमोक्रेसी का मर्डर किया। जिस संविधान के द्वारा, जिस आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदुस्तान को कश्मीर दिया, आज उसी संविधान और अजी लोकतंत्र को मोदी सरकार ने ये खुशियां उड़ा दी। इसीलिए हम दोबारा प्रोटेस्ट। माननीय सभापति महोदय, गुलाम नबी साहब ने कहा कि धारा 370 ऐतिहासिक है। मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो बिल लेकर आया हूं वो भी ऐतिहासिक है, इतिहास बनाने वाला बिल। 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अवाम आज गुर्बत में जी रहे, गरीबी में जी रहे, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। वहां की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहां के दलितों ट्राइबल के साथ अन्याय हो रहा है, वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है। और 370 की छाया में तीन परिवार ने जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। सभापति महोदय, विपक्ष के नेताजी ने कहा, विपक्ष के नेता ने कहा कि धारा 370 ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। माननीय सभापति महोदय, ये सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर साइन किया गया। मैं फिर से इसी कहना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 1947 को और धारा 370 1949 में आई। जम्मू कश्मीर छूटने के बाद 2 साल तक ये सत्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारत के साथ, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ धारा 370 ने जोड़ा है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 ने कभी भारत के साथ एक रस नहीं होने दिया। और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि ये गैर संवैधानिक तरीका है तो वाद विवाद करे, शोर शराबा न करे, संविधान की जिस धारा को वो कहना चाहता है इसके अंतर्गत चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं। संविधान जब बना तब से धारा 370 को अस्थायी माना गया। क्यों अस्थायी माना गया? अस्थायी इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था, बहुत पहले हटना था, मगर किसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी, इसके आधार पर वोट बैंक बनानी थी। हमें ना वोट बैंक बनानी है, ना हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। नरेंद्र मोदी जी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को कमी है, इसलिए आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि कृपया इस पर चर्चा करिए। देश जानना चाहता है कि इतने समय धारा 370 क्यों चालू रही। देश जानना चाहता है इतने समय कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार क्यों हुआ। देश जानना चाहता है
कश्मीर के ट्राइबल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है 34A के तहत कश्मीर की माताओं बहनों को अपने बच्चों को कश्मीरी कहलाने का अधिकार क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है सभापति महोदय, सबसे ज्यादा पैसा कश्मीर के अंदर गया, फिर भी कश्मीर का लोग आज गरीब क्यों है वो देश जानना चाहता है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं विपक्ष के सभी सभासदों को, कृपया चर्चा करिए। आप आपके तर्क बेखौफ रख सकते हैं, शौक से रख सकते हैं। मैं हर एक तर्क का जवाब दूंगा और मैं दृढ़ मान्यता के साथ आया हूं कि धारा 370 हटाने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। Rangopal ji, you want to participate in the debate? Now the debate is open on all 4 issues, but voting will be separate. Voting will be separate. Rangopal, you want to speak? Sri Satish Chandra Mishra. Please others go to your seats. Manoj ji, आप अपना जगह पे please. जम्मू कश्मीर, You can one second. Anyone can effectively counter the government. You can oppose. You can protest. You can vote against the bill also. Honorable Chairman sir, Sri Satish Chandra Mishra goes on record. Sri Satish Chandra Mishra goes on record. हमारी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करती है और हम चाहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए और 370 पे और उस पे जो दूसरा बिल है उस पे हमारी पार्टी कोई विरोध नहीं कर रही है। Thank you. Now, Sri Satish Chandra Mishra has spoken. Now, Sri Professor, ये मित्रों में इस विधेयक के लिए 12:30 बजे तक किसी को संशोधन देना है तो उनके लिए मौका दिया मैंने। I have already announced that up to 12:30, any member desires to move any amendment to any class or subclass, they are free to give it. Before that, the discussion will be going on. Voting will take place only after this discussion is over, one by one, not together. Discussion will be together, but voting will be separate. Please understand this. So I now request Sri Ghulam Nabi Azad ji. Sri Ghulam Nabi Azad ji want participate in debate. Sri Bhupendra Yadav. माननीय सभापति महोदय, आज इस देश में ऐतिहासिक मैंने पहले ही कहा इस बिल के लिए 4 घंटा का 4 बिल्स के लिए 4 घंटा का समय दिया है, तो we will have time up to that and there won't be any lunch break. Whoever want to have lunch they can go and come back. हमारे देश में इसलिए है कि आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा इस सदन में संकल्प लाए गए हैं, बिल लाए गए हैं जो भारत की एकता और अखंडता को, भारत के विषय को आगे बढ़ाने के लिए और एक ऐसा भारत बनाने के लिए संकल्प लाए गए हैं जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किया जाएगा। महोदय, हम संसद के रूप में यहां पर शपथ लेते हैं और संसद के रूप में जो हम शपथ लेते हैं उस शपथ में हम सबसे पहले कहते हैं कि हम भारत के संविधान में निष्ठा रखेंगे और भारत के संविधान में निष्ठा रखने के साथ साथ हम जो अपनी शपथ में दूसरी बात कहते हैं कि भारत की सॉवरेंटी और भारत की यूनिटी ये हमारे लिए सबसे बड़ा काम रहना है। और तीसरा विषय जो हम हमेशा कहते हैं कि संसद के रूप में जो दायित्व हमें दिया जाता है उसको पूरा करने का काम हम करेंगे। महोदय, इस आज बहस को शुरू करने के लिए मैं प्रारंभ में इस संसद की प्रक्रिया की कुछ बातों को कहना चाहूंगा। महोदय, विपक्ष ने आज सुबह 267 का नोटिस दिया और माननीय सभापति जी के द्वारा आज सुबह 267 का नोटिस दिया और माननीय सभापति जी के द्वारा उनको बोलने के लिए कहा गया। इस सदन में
267 के साथ साथ रूल 266 में माननीय सभापति जी को पावर है कि किसी भी रूल को वेव किया जाए। और मुझे आज बड़ा विनम्रता से कहते हुए दुख हो रहा है कि विपक्ष के सदस्यों के 267 पे माननीय सभापति महोदय ने कहा कि आप जम्मू कश्मीर की चर्चा पे बोल सकते हैं, लेकिन बोलने की बजाय आज उन्होंने संसदीय मर्यादा को तार करने का काम किया है। मैं विपक्ष से फिर कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात को रखने से पहले मैं विपक्ष को यह कहना चाहूंगा कि जिस संविधान की आपने शपथ ली है, जिस भारत की एकता और अखंडता की बात हम लोगों ने करी है, जिस संसदीय दायित्व को हमने करने का काम किया है, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप कृपया करके एक बार बहस में हिस्सा लीजिए। यहाँ बैठे हुए सारे विपक्ष के सदस्य इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ रूल 235(7) में ये कहा गया है कि जब ये सदन चलेगा तो इस सदन के साथ साथ सबको अपनी सीट पर बैठना होगा, लेकिन वो बैठने का काम नहीं कर रहे हैं। महोदय, इस सदन में पहले भी इस प्रकार से हुआ है कि बिल हमेशा सप्लीमेंट्री बिजनेस के साथ इंट्रोड्यूस होते रहे हैं। आज ये विपक्ष नहीं कह सकता है कि इस बिल को लाने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं कहा गया था। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि 2 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी। 2 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में एजेंडा नंबर 1 जो था वो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल का था, और इस एजेंडा नंबर 1 में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिसमें पक्ष और विपक्ष के सारे सदस्य बैठे हुए थे, वहां 2 घंटे का समय जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल को दिया गया। आज उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को छोड़ करके अगर ये विरोध कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा ये केवल राजनीतिक विरोध है। इस विरोध का जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के नागरिकों से, जम्मू कश्मीर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस देश में कांग्रेस को कम से कम ये समझना चाहिए कि कांग्रेस ने कभी भी इस देश की एकता के लिए जो जम्मू कश्मीर के लिए जो कदम उठाना चाहिए था वो उठाने का काम नहीं किया। और 70 सालों में जो काम आपने नहीं किया वो अगर आज विषय को हमारे गृह मंत्री जी लेकर के आए हैं तो आपको साथ बढ़ के आना चाहिए, न कि उसका विरोध करना चाहिए। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि when we enter into this August House, we take oath that we shall bear true faith and allegiance of the Constitution of India, and that we will uphold the sovereignty and integrity of India. और इसका तात्पर्य यह है कि भारत की एकता और अखंडता को पूरा करने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को पूरा बनाए रखने के लिए हम सब लोगों को आज इस सदन में इस चर्चा में भाग लेना चाहिए। और इसलिए मैं पुनः एक बार विपक्ष को कहना चाहूंगा कि वो चर्चा में भाग लें। महोदय, हमारे देश में जो हमारा आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में देश के यूनियन और टेरिटरी को व्याख्या किया गया है, और आर्टिकल 1 जो है उसमें जम्मू कश्मीर को भारत की यूनियन और टेरिटरी के रूप में व्याख्या किया गया है। और इसलिए अगर परमानेंट है तो आर्टिकल 1 है, अगर कोई टेम्परेरी आर्टिकल था तो वो आर्टिकल 370 था। विपक्ष को ये समझना चाहिए कि जो प्रोविजनल था, प्रोविजनल क्यों रखा गया, उस समय की परिस्थितियां क्या थी। जम्मू कश्मीर में माननीय गृह मंत्री जी ने बताया, उस समय के जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया था, जम्मू कश्मीर के विलय में उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा ने उस विलय को करते समय ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का भाग होगा। लेकिन उस समय की परिस्थिति के अनुसार इस विलय के लिए, उस समय की परिस्थिति के अनुसार इसको विलय करने के लिए जो तात्कालीन परिस्थिति थी, उस तात्कालीन परिस्थिति के हिसाब से ये 370 का एक टेम्परेरी प्रोविजन लाया गया। लेकिन जो भारत के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत हमारे देश में, हमारे समय में सदन इस बात का साक्षी रहा है कि समय समय पर विभिन्न भारत में हम लोगों ने अनेक प्रदेशों को शामिल करने के लिए इसी सदन के द्वारा एक मत होकर के प्रस्ताव पास किए गए हैं। मैं कांग्रेस के सदस्यों को ये याद दिलाना चाहता हूं
कि 7 मार्च 1974 को सिक्किम को इस देश की टेरिटरी में जब शामिल किया गया था तो पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने एक दिन के अंतर्गत उस प्रस्ताव को पारित किया गया था। विपक्ष के लोग ये भूले नहीं कि भारत की एकता और अखंडता का विषय है। मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं कि 7/8/1975 को सिक्किम के 4 मार्च 1974 को सिक्किम को शामिल किया गया और उसके बाद हमारे देश में उसके बाद आगे भी ये प्रक्रिया जारी रही। उससे पहले 12 मार्च 1962 को गोवा, दमन दीव और यूनियन टेरिटरी को इसी सदन ने भारत की एकता और अखंडता के लिए व्याख्यात करते हुए एक मत से शामिल करने का काम किया था। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पुडुचेरी को भी इसी सदन ने एक साथ व्याख्या करके शामिल करने का काम किया था। इस सदन में एक ऐसे क्षण आए हैं जब देश के जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है उन महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों को स्वीकार किया गया। अभी हाल ही में हमने पूरे देश में जो 10% का आरक्षण दिया और 10% का आरक्षण देश के गरीबों को देने का काम किया, उस 10% के आरक्षण को इस सदन ने एक मत से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी नहीं आया था, लेकिन वो देश के लिए जरूरी था और देश के दोनों सदनों ने इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए उसको एक मत के साथ पास करके इस देश के 10% गरीबों को देने का काम किया। ये आज विपक्ष ये नहीं कह सकता है कि हम लोग किसी प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। सदन में चर्चा करने का, सदन में विषय रखने का, सदन में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। महोदय, मैं आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने आज जो जम्मू कश्मीर का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस ने किस प्रकार से इस सदन की मर्यादा को तार-तार किया था। हमको ध्यान होना चाहिए कि कांग्रेस की एक जब पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ जब निर्णय आया था तो केवल उस निर्णय को ध्वस्त करने के लिए एक ही दिन में लोकसभा बुलाई गई, राज्यसभा बुलाई गई और शनिवार को 17 राज्यों को दिल्ली में बुलाया गया और 17 राज्यों को दिल्ली में बुलाकर संवैधानिक संशोधन किया गया। यहाँ ऐसा करने का काम नहीं किया गया है। यहाँ पर जो विषय रखा गया है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से रखा गया है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ाया गया है। महोदय, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने सबसे पहले रिजर्वेशन के बिल को रखा गया। ये रिजर्वेशन की हमारी संकल्पना क्या है? ये जम्मू कश्मीर में आज तक रिजर्वेशन क्यों लागू नहीं हो पाया है? ये रिजर्वेशन का हमने सेकेंड अमेंडमेंट बिल रखा है, लेकिन ये जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले सदन में जब एक मत होकर के रिजर्वेशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट बिल रखा था, उस फर्स्ट अमेंडमेंट बिल को सभी दलों ने सहयोग दिया था। वो क्यों दिया गया था? वो सहयोग इसलिए दिया गया था कि जम्मू की सीमा पर जो रहने वाले लोग हैं, लगातार पड़ोसी देश के आक्रमण के कारण, लगातार पड़ोसी देश के आक्रमण होने के कारण उन लोगों के घर और परिवार से उनको बार बार बेदखल किया जाता है और इस कारण से वो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। वो भारत की एकता, भारत की सुरक्षा के लिए लगे हुए लोग थे, लेकिन उनके जो रिजर्वेशन देने का जो एक लंबे समय से 70 साल से जो पेंडिंग काम था, उसको पूरा करने का काम इस सदन को चलने में सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। और लेकिन जब ये हम पहला रिजर्वेशन का कानून लेकर के आए तो निश्चित इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, 72 साल बाद अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा अब जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा, बल्कि एक लिहाज से देखा जाए राज्य का दर्जा ही नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर स्टेट का बाइफर्केशन हो गया है। जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी रहेगी, लद्दाख दूसरी यूनियन टेरिटरी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित
अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन और उत्पाद के जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू होंगे। संशोधन तथा जम्मू कश्मीर आरक्षण सूचना संशोधन विधेयक 2019 नाम को प्रस्तावित किया है। संघ सरकार ने भारत के संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव लेकर मैं आया हूँ। यह आरक्षण अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग और सीमा के आरक्षण के अलावे ज्यादा 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया जाएगा। आरक्षण का उपयोग प्राप्त जम्मू और कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और उसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो बच्चों को देंगे, शिक्षा में भी देंगे, नौकरियों में भी देंगे और एक संवैधानिक आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर में इसको के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर राज्य के मौजूदा आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में 10% आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर सरकार ने एक प्रस्ताव किया है, जिसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के मंत्रिमंडल ने स्वीकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का नक्शा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, यानी जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी की तरह से रहेगा और लद्दाख एक और यूनियन टेरिटरी होगा, यानी कि बाइफरकेशन हो गया जम्मू कश्मीर का। अनुच्छेद 370 हटेगा। साथ ही साथ दूसरा बड़ा फैसला यह है कि 2 यूनियन टेरिटरीज में अब जम्मू कश्मीर डिवाइड हो गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर ये दोनों जगहें होंगी। जम्मू कश्मीर का अपना लेजिस्लेचर होगा, यानी विधानसभा होगी। और से वेलकम करता हूं, क्योंकि लद्दाख चाहते थे कि एक यूनियन टेरिटरी बने, फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर हो। कश्मीर के जो डोमिनेंसी से, कश्मीर के जो डिस्क्रिमिनेशन से लद्दाख को मुक्त मिले, वो आज होने जा रहा है। हम इस बिल का वेलकम करते हैं। असेंबली नहीं होगी सर, सीधे केंद्र का शासन होगा वहां पर, तो क्या नहीं, कुछ तो हो रहा है। अभी तक जिन्होंने इसका सुनवाई नहीं किया, पिछले 65 साल तक जिन्होंने इस डिमांड का सुनवाई नहीं किया, लेकिन आज इस बात का सुनवाई तो हो रहा है। हम इसका वेलकम करते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टियां हैं उनकी तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला, जो रिएक्शन दे रहे हैं, क्या कहें? नहीं, उनको आपको पता है वहां पारिवारिक पार्टी है, न देश के हित में वो लोग नहीं सोचेंगे, न जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में नहीं सोचेंगे। उनको अपना फैमिली बिजनेस चलाना है, तो उसी को लेके वक्तव्य दे रहा है। ये पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक जानते हैं। सरकार से सांसद